بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر کسی انسان کے دل میں اتر جائے اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کا چلنا، اس کا سوچنا، اس کا دیکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نفس کیا ہے، سوال اس سے بھی بڑا ہے، اللہ نے نفس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو فرشتوں جیسا بنا دیتے، بے گناہ، پاک، جن کے اندر نہ خواہش، نہ ضد، نہ غصہ، نہ حسد، نہ لالچ۔ مگر اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو ایک ایسا وجود بنایا جس کے اندر محبت بھی ہے اور خواہش بھی، نور بھی ہے اور سرکشی کی آگ بھی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا، پھر اسے اس کی برائی بھی سکھا دی اور اس کی نیکی بھی۔ میرے عزیزو، اللہ نے نفس کو صرف اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہمیں گمراہ کرے، نہیں۔ اللہ نے نفس کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان کے اندر امتحان ظاہر ہو جائے۔ جس طرح سونا آگ میں تپ کر خالص ہوتا ہے، اسی طرح انسان نفس کی خواہشوں سے لڑ کر پاک ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اگر ہمارے اندر نفس نہ ہوتا تو صبر کیسا ہوتا، تو تقوی کیسے بنتا، تو مجاہدہ کہاں ہوتا، تو اللہ کے قریب ہونے کی لذت ہم کیسے جانتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی اپنے نفس کو مارا، اللہ نے مجھے بلندی دی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو قابو کرنا ہی اصل مردانگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ نفس اگر نہ ہوتا تو یہ لڑائی بھی نہ ہوتی، اور اگر لڑائی نہ ہوتی تو اللہ کے ولی بھی نہ بنتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان صرف اس وقت بڑا بنتا ہے جب وہ اپنی خواہش کو اللہ کی رضا کے آگے توڑتا ہے، جب وہ کچھ چاہ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، جب وہ کچھ کر سکتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف سے نہیں کرتا۔ کبھی رات کو کوئی گناہ تمہیں بلاتا ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، آواز آتی ہے کہ ایک دفعہ کر لو، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ نفس ہے۔ اور پھر دل کے اندر دوسری آواز آتی ہے، ڈرو اللہ سے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اور جو اس وقت اللہ کو چن لیتا ہے وہ اللہ کا بندہ کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نفس کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے اسے چنے، اپنی چاہتوں کو اس کے لیے چھوڑے، اپنی خواہشوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دے۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، یعنی جنت کی قیمت خواہشات کا خون ہے، جنت کی قیمت نفس کی مخالفت ہے، جنت کی قیمت دل کی جنگ ہے، اور یہ نفس اسی لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نفس انسان کے اندر رکھا کیوں گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اللہ نے نفس اس لیے رکھا تاکہ انسان اللہ تک محنت سے پہنچے، سفر سے پہنچے، جد و جہد سے پہنچے۔ اگر انسان کے اندر شہوت، غصہ، لالچ اور حسد نہ ہوتے تو انسان کے اعمال فرشتوں جیسے ہوتے، اور پھر انسان کا مرتبہ فرشتوں کے برابر رہتا۔ مگر اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا؟ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، یہ انسان زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ نے جواب میں بس یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے تھے اللہ؟
यही कि इंसान के अंदर ख्वाहिश भी होगी, गलती भी, कमजोरी भी, मगर इसी ख्वाहिश, इसी गलती, इसी कमजोरी के बावजूद जब वो अल्लाह को चुनेगा तो उसका दर्जा फरिश्तों से ऊपर हो जाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, नफ्स वो घोड़ा है जो आदमी को जन्नत तक भी ले जा सकता है और जहन्नम तक भी। इसका रुख तुमने तय करना है। मेरे भाइयों, नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है कि वो अंदर चीखता नहीं, वो बाहर नजर नहीं आता। शैतान कभी कभी हमला करता है, मगर नफ्स हर लम्हा मौजूद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है जो तुम्हारे पहलू में है। और अल्लाह ने नफ्स इसलिए रखा ताकि इंसान की असल हकीकत जाहिर हो जाए। कौन है जो ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह को चुनता है? कौन है जो नफ्स की आवाज दबाने के लिए रातों को उठता है? कौन है जो गुस्से की आग को निगल लेता है? कौन है जो दुनिया की कशिश छोड़कर अल्लाह को पुकारता है? हर नमाज नफ्स के खिलाफ जंग है, हर रोजा नफ्स की भूख पर वार है, हर ज़कात नफ्स के लालच पर ज़र्ब है, हर हज नफ्स की ख्वाहिश का कत्ल है। अगर नफ्स ना होता तो ये सारी इबारतें भी ना होती, सजदा भी आसान होता, रोजा भी आसान होता, तहज्जुद भी आसान होता, गुनाह छोड़ना भी आसान होता। मगर अल्लाह ने इंसान के अंदर नफ्स रखा ताकि बंदा अपनी मर्जी के खिलाफ अल्लाह की मर्जी को चुने। मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोकता रहा तो उसका ठिकाना जन्नत है। ये आयत बताती है कि जन्नत आमाल से नहीं मिलती, जन्नत नफ्स की मुखालफत से मिलती है। नफ्स कहे गुस्सा उतार दे, दिल कहे नहीं, अल्लाह के लिए माफ कर दे। नफ्स कहे हराम देख ले, दिल कहे नहीं, अल्लाह देख रहा है। नफ्स कहे झूठ बोल दे, दिल कहे नहीं, अल्लाह नाराज हो जाएगा। नफ्स कहे गुनाह कर ले, दिल कहे नहीं, आज नहीं, कभी नहीं। और जो ऐसी जंग जीत लेता है वो अल्लाह का खास बंदा बन जाता है। कभी कभी इंसान रोता नहीं मगर दिल रोता है। कभी आंखों से आंसू नहीं निकलते मगर रूह आंसू बहाती है। ये सब नफ्स की कश्मकश है और यही इंसान की असल आजमाइश है। नफ्स को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि इंसान सीखे कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता ख्वाहिश को कत्ल करने से निकलता है, अपने दिल को पाक करने से निकलता है, अपने अंदर के दुश्मन को हराने से निकलता है। और अल्लाह के वली दुनिया से नहीं डरते, वो अपने नफ्स से डरते हैं। उन्होंने नफ्स का सर काटा, ख्वाहिश को मारा, अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के आगे रखा, इसीलिए वो वली कहलाए। उन्होंने नफ्स को सजदे में झुकाया, अल्लाह ने उन्हें वलियों में गिनती कर ली। मगर मेरे भाइयों, ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब नफ्स को पहचाना जाए, जब नफ्स के हर हमले से बचा जाए और जब दिल के दरवाजे पर अल्लाह के नाम का दाना पैंद रखा दिया जाए। तो याद रखो, नफ्स तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है मगर तुम्हारा सबसे बड़ा मुहाफिज भी। अगर तुम इसे जीत लो तो समझो कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता पा लिया, और अगर तुमने इसके आगे हार मान ली तो समझो कि दुनिया और आखिरत में खुद को हलाक कर लिया। तो फिर सोचो, नफ्स को क्या करना है, इसे कैसे हराना है और किस तरह इसके आगे अपने अल्लाह के हुक्म को खड़ा करना है। नफ्स के 3 दर्जे और वजह तख्लीक। और मेरे अजीजों, जब इंसान अल्लाह की इस तख्लीक यानी नफ्स को समझना शुरू करता है तो उसकी एक नई दुनिया खुलती है, क्योंकि नफ्स सिर्फ एक चीज नहीं,
یہ 3 शक्लों में इंसान के अंदर काम करता है। अल्लाह ने कुरान में इन तीनों का जिक्र किया है ताकि बंदा जान सके कि वो किस दर्जे पर खड़ा है, उसे कहां जाना है और अल्लाह ने क्यों इसके अंदर ये ताकत रखी। पहला दर्जा है नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो इंसान को बुराई का हुक्म देता है, जो इंसान को खींचता है, जो हर गुनाह को खूबसूरत बना देता है। कुरान में आया है, इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देने वाला है। ये नफ्स इंसान के अंदर पहला हमला करता है, दिल में वसवसा डालता है, ये कर लो, कोई नहीं देख रहा, ये छोड़ दो, इसमें क्या फायदा, नमाज बाद में पढ़ लेना, एक दफा देख लो, कोई मसला नहीं, गुस्सा उतारो, अपनी इज्जत बचाओ, हसद करो, दिल ठंडा हो जाएगा। यही वो नफ्स है जिसने काबील को भाई हाबील का खून बहाने पर उकसाया। यही नफ्स है जो इंसान को जिद्दी बनाता है, सरकश बनाता है, और यही वो नफ्स है जिसने कौम आद, कौम समूद और कौम लूत को तबाही की तरफ धकेला। अगर अल्लाह चाहते तो इंसान के अंदर ये नफ्स अम्मारा रखते ही नहीं, मगर अल्लाह ने इसे रखा ताकि पता चले कि कौन इंसान ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह को चुनता है, कौन अपनी आंखों की चाहत मारकर अल्लाह के लिए पाक रहता है, कौन रात को स्क्रीन बंद करके अल्लाह की खातिर अपने दिल को बचाता है। ये वो मकाम है जहां इंसान बंदगी का आगाज करता है। दूसरा दर्जा है नफ्स लव्वामा, वो नफ्स जो इंसान को मलामत करता है, गलती करने के बाद खुद को कोसता है, कहता है ये ठीक नहीं हुआ, मैं क्यों गिर गया, अल्लाह नाराज हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नफ्स अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। ये नफ्स गुनाह तो कर लेता है मगर सोए हुए दिल को जगाता है। इंसान रो पड़ता है, इस्तिग़फार करता है, सीना भारी हो जाता है। ये अल्लाह की निशानी है कि इंसान अभी जिंदा है, उसका दिल मुर्दा नहीं हुआ, अभी उसके अंदर रोशनी बाकी है। अल्लाह ने कसम खाई इस नफ्स की, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कसम है मलामत करने वाले नफ्स की। क्यों कसम खाई? क्योंकि ये नफ्स इंसान को वापस अल्लाह की तरफ धकेल देता है, गलतियों से पाक करता है, दिल नरम करता है, आंखों में नमी लाता है, सजदों में बदन को झुका देता है। ये वो मकाम है जहां इंसान के अंदर नूर पैदा होना शुरू होता है। और तीसरा दर्जा है नफ्स मुतमइन्ना, वो नफ्स जो सुकून पा चुका हो, जिसके फैसले अल्लाह के मुताबिक हो चुके हों, जिसके अंदर की जंग खामोश हो गई हो, जिस पर अल्लाह ने अपने कुर्बत के दरवाजे खोल दिए हों। कुरान में इसके बारे में है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, बेशक आज वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नाकाम हो जिसने इसे गंदा किया। ऐ इत्मीनान वाली जान, वापस आ जा अपने रब की तरफ, राजी भी और जिससे अल्लाह भी राजी है। मेरे भाइयों, सोचो, अल्लाह फरिश्तों से ये नहीं कह रहे, ये मकाम इंसान को मिलता है, मगर कैसे? जब वो अपने नफ्स अम्मारा से लड़े, फिर नफ्स लव्वामा की आग से गुजरे, तब नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचते हैं। अल्लाह ने इंसान के अंदर ये 3 दर्जे इसलिए रखे ताकि इंसान को सफर मिले, इंसान को मंजिल मिले और इंसान को इम्तिहान मिले। अगर इंसान सीधा पाकीज़गी पर पैदा होता तो जन्नत कोई इनाम न रहती, वो तो एक हक बन जाती। मगर अल्लाह चाहता है कि इंसान की मेहनत का वजन हो, उसके फैसलों का नूर हो, उसकी तड़प की कीमत हो। इसीलिए अल्लाह ने इंसान के अंदर नफ्स पैदा किया ताकि इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते रहें, एक नफ्स का और एक अल्लाह का, और इंसान खुद फैसला करे कि वो किस तरफ जाता है। सहाबाए कराम जब गुनाह से बचते थे तो कहते थे, हमने अपने नफ्स को जंजीरों में बांध लिया है, वरना ये हमें खाने को दौड़ पड़ता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान का नफ्स बच्चे की तरह है, अगर तुम इसे मजबूती से ना खींचो तो ये तुम्हें घसीट ले जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया उसने दुनिया को जीत लिया। मेरे अजीजों, वो लोग वली इसलिए नहीं बने कि उनके पास ताकत थी, वो वली इसलिए बने कि उन्होंने अपने अंदर के दुश्मन को पहचान लिया था।
उन्होंने दुनिया को नहीं समझा, नफ्स को समझा। उन्होंने लोगों से जंग नहीं की, अपने नफ्स से की। हदीस में आता है, बंदा गुनाह ना भी करे मगर अपने नफ्स के खौफ से अल्लाह के सामने लरसता रहे तो अल्लाह उसे भी अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा देता है। और इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनका नफ्स हर वक्त उन्हें गुनाह की तरफ धकेलता है, मगर वो अल्लाह की मोहब्बत के लिए रुकते हैं, अपने आप को रोकते हैं। ऐसी रोक इंसान की सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। कभी कभी इंसान गुनाह छोड़ नहीं पाता मगर कोशिश छोड़ देता है। इसी कोशिश न छोड़ने का नाम मुजाहिदा है, और ये मुजाहिदा नफ्स के बगैर मुमकिन नहीं। इसीलिए अल्लाह ने इसे पैदा किया। अगर नफ्स ना होता तो इंसान में आजिज़ी ना होती, गरिया ना होता, तौबा ना होती, सजदों की लज्जत ना होती, अल्लाह की तरफ पलटने की लज्जत ना होती। ऐसे ही अल्लाह के एक वली फरमाते थे, अगर नफ्स ना होता तो इंसान कभी अल्लाह से यूं लिपट कर ना रोता जैसे गुनाहगार रोता है। मेरे भाइयों, नफ्स की तख्लीक अल्लाह की हिकमत का अजीम राज है। अल्लाह ने इंसान को अधूरा बनाया मगर इस अधूरेपन में कामिल होने का रास्ता रखा। अल्लाह ने इंसान को कमजोर पैदा किया मगर इसी कमजोरी में अल्लाह की कुर्बत का दरवाजा छुपा दिया। अल्लाह ने इंसान के अंदर ख्वाहिश रखी मगर इसी ख्वाहिश के मुकाबले में फैसला करने से इंसान जन्नत के लायक बनता है। और अल्लाह ने इसीलिए कुरान में बार बार ये कहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब वो हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया और नामुराद वो जिसने इसे गंदा किया। कामयाबी दौलत से नहीं, शोहरत से नहीं, किस्मत से नहीं, कामयाबी नफ्स की पाकीज़गी से है। नफ्स की मुखालफत के बगैर इंसान कभी अब्द नहीं बन सकता, कभी महबूब नहीं बन सकता, कभी मुकर्रब नहीं बन सकता। और यही वजह है कि अल्लाह ने इंसान को ऐसे पैदा किया कि वो झुके, लड़े, थके मगर वापस अल्लाह की तरफ पलटे। ये पलटना अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हदीस में आता है, अल्लाह को वो बंदा बहुत महबूब है जो लड़खड़ाता है, गिरता है मगर फिर उठता है, फिर पलटता है, फिर अपने रब की तरफ लौट आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने नफ्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है और यही जंग उसे अल्लाह के करीब करती है। यही जंग उसे जन्नत के बागों में ले जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, जिस दिन इंसान ने अपने नफ्स की जड़ काट दी उस दिन वो आजाद हो गया। दुनिया की नजरें, लोग क्या कहेंगे, इज्जत, शोहरत सब खत्म हो जाता है। बस अल्लाह बाकी रह जाता है, बस अल्लाह की रज़ा बाकी रह जाती है। इसीलिए औलिया कहते हैं, मैंने जब अपने नफ्स को कत्ल किया तब मैं जिंदा हुआ। यही वजह है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर नफ्स पैदा किया ताकि इंसान अल्लाह तक चलकर नहीं बल्कि लड़कर, गिरकर, रोकर, जलकर, जल कर अपने अंदर के अंधेरों को मिटा कर पहुंचे। क्योंकि दुनिया में सबसे खूबसूरत रोशनी वो है जो इंसान अपने नफ्स से लड़कर हासिल करता है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर इस पूरी गुफ्तगू ने आपके दिल के अंदर कहीं कोई लर्जा पैदा किया हो, अगर किसी एक जुमले ने भी आपके दिल को जगाया हो, तो ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को यूं बेवजह नहीं जगाता। जब दिल हिलता है तो समझ लो कि रब बंदे को अपनी तरफ बुला रहा होता है। मेरे अजीजों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमने राज़े जिक्र का व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है, इसलिए कि आप तक हर वीडियो, हर जिक्र, हर दुआ बर वक्त पहुंच सके। क्योंकि बाज दफा यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, मगर व्हाट्सएप हर लम्हे आपके हाथ में होता है। आपसे दरखास्त है, हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें ताकि हम और आप इस सफर जिक्र में एक साथ रह सकें और दिलों के इस कारवान में कोई भी पीछे ना रह जाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर ये वीडियो आपके दिल को जरा भी छू गई हो तो इसे सिर्फ देखकर छोड़ मत दें। लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का दिल नरम हो जाए, किसी की गुमशुदा उम्मीद वापस आ जाए और इसका सवाब हमेशा आपके नामे में लिखा जाए। हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम अल्लाह का पैगाम दिलों तक पहुंचा रहे हैं।
और इस रास्ते पर आपका एक छोटा सा कदम भी हमारे लिए बड़ा सहारा है और आपके लिए बड़े अजर का जरिया। इसलिए मेरी आप सबसे मोहब्बत भरी दरख्वास्त है, राज़े जिक्र को सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और हमारे साथ इस सफर को आगे बढ़ाएं, ताकि ये नूर, ये जिक्र, ये अल्लाह की रहमत आपके घरों, आपके दिलों, आपकी आने वाली नस्लों तक पहुंच सके। आखिर में बस इतना कहूंगा, या अल्लाह, जो ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की हर टूट फूट को जोड़ दे, उसकी हर परेशानी को आसान कर दे, उसकी रूह को अपने नूर से भर दे और उसे उन बंदों में शामिल कर दे जिन्हें तू पसंद करता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो